Good morning, guys. Today we discussing chapter number 5, history. What books and burials tell us? कौन सी बुक्स और कौन सी burials क्या होते हैं guys? burials होते हैं जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया जाता है। उनसे हमें पता पड़ता है कि उनके मतलब वहाँ के लोग कैसे थे, क्या करते थे। तो अभी हमें कौन सी क्या क्या थे जिनसे हमें पता पड़ा हिस्ट्री के बारे में। जो सबसे पुरानी बुक है नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पुरानी बुक है इज सपोज टू बी दैट ऑफ द वेदास। वेदा को सबसे पुराना सोर्स माना जाता है क्योंकि उनसे हमें पता पड़ता है कि पहले क्या होता थे, क्या नहीं, क्या क्या पहनते थे, क्या खाते थे। दे वर रिटन अबाउट 3000 ईयर बैक एंड आर द अर्लीस्ट लिटरेसी सोर्स अवेलेबल। वेदा, वेदा वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज। वेदा का मतलब है नॉलेज। 4 टाइप के वेदा थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद। जिसमें से ऋग्वेद था सबसे पुराना वेद था। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा. It was composed about 3000 year ago. 3500 year ago composed बनाया गया था. Hymns have been composed by sages. Hymns have been composed by sages. हाइम्स क्या थे? हाइम्स कंपोज किए गए थे। सेज मीन्स क्या होता है गाइस? सेज मीन्स होता है एक समझदार इंसान, जजमेंट जो देता है, उसके द्वारा बनाए गए थे। These hymns were recited and passed from one generation to another generation until they were written down. These hymns are in praise of different gods such as Indra, god of warrior, Agni, god of fire, Soma, a plant from which the special drink Som Ras was made. Rig Veda was printed less than 200 years ago. Rig Veda printed किया गया था less than 200 years ago. How do historians study the Rig Veda? While studying about the past, historians examine written sources. They study the Rig Veda. Most of the hymns in Rig Veda were in the form of dialogue. Historians studied this dialogue to arrive at conclusion. Rig Veda, what does it tell us about prayers and battle? ऋग वेदा में क्या है कि प्रेयर्स और बैटल्स के बारे में क्या बताया गया है? मोस्ट प्रेयर्स इन द ऋग वेदा आर फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेज. मोस्ट जो प्रेयर है इन द ऋग वेदा आर फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेज. हॉर्सेज वर योक्ड टू चैरियट एंड यूज्ड इन बैटल्स. Battles aim to capture cattle and land, pasture, water, etc. ऋग वेदा में ये बताया गया है कि जो मोस्ट प्रेयर्स होती थी इन द ऋग वेदा वो कैटल के लिए होती थी, गाय के लिए होती थी, बच्चों के लिए होती थी और हॉर्सेस के लिए होती थी. जो हॉर्सेस होते थे वो वॉक्ड टू चैरियट एंड यूज्ड इन बैटल. ठीक है, बैटल्स में यूज़ किए जाते थे, उनसे हम चलाते थे, घुड़सवारी करते थे. बैटल्स एम टू कैप्चर कैटल. बैटल क्यों होती थी? गाय पकड़नी है, लैंड पकड़ना है, पास्चर करना है, वाटर है, पीपल है. वेल्थ कैप्चर इन द बैटल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्राइस्ड एंड पीपल. वहाँ के प्राइस्ड को लोगों को बांट दिया जाता था. दे वर 2 ग्रुप विच वर डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ देयर वर्क. द प्राइस्ड, समटाइम कॉल्ड ब्राह्मण्स, who performed various rituals, and the rajas. There were 2 groups who were described in terms of their work. Priests, sometimes called Brahmins, who performed various rituals, and the Rajas. Raja had no capital, place, and army. Taxes were not collected, and there was no hereditary monarchy. Occupation: agriculture, cattle rearing, chariot making, pottery, jewelry making, tanning, metal work were the main occupation. Jana and wish. Jana क्या है? Describe the people or the community as a whole. जन और विश. जाना है JANA, जन. ठीक है. To describe the people or the community as a whole, 2 words were used, जन and wish. Several wish or जन are mentioned by name. So find Puru, जन and wish, the Bharata, जन and wish, Yadu, जन, etc. Dasas, Dasyus.
Dasas, Dasyus. People who compose hymns describe themselves as Aryans, and the group of people who opposed them were called Dasyus. What do you mean by Dasyus? And this question may be comes in many exams. Das, Dasyus. Dasyus क्या है कि people who compose hymns to describe themselves as Aryan, जिन्होंने कंपोज किया hymns वो आर्यन से, और जो people group of people who oppose them, जो उनको अपोज करते थे वो दास्यूस थे. Dasyus were the people who did not perform sacrifices, probably spoke different language. They were called dasas and dasyus or slaves. Silent sentinels. Silent sentinels सेंटिनल्स क्या होते थे? सोल्जर्स होते थे जो खड़े रहते थे, की निगरानी रखते थे. बिग स्टोन और द स्टोन बोल्डर आर नोन एज मेगालिथ which were carefully arranged by people and were used to mark burial site. Archaeologists often find a circle of stone boulder or a single large साइलेंट सेंटिनल्स. जो बिग स्टोन होते थे और स्टोन बाउल्डर्स, उनको हम मेगालिथ बोलते हैं. विच वर केयरफुली अरेंज बाय पीपल, केयरफुली अरेंज किया जाता था पीपल के द्वारा. एंड वर यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट. ब्यूरियल जहाँ पे हम दफनाते हैं वहाँ पे एक पत्थर लगा देते भाई इस आदमी की है, उसको बोला गया है यहाँ पे. आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ्टन फाइंड ए सर्कल ऑफ स्टोन. आर्कियोलॉजिस्ट ने ऑफ्टन मतलब उनको ऐसे मिले हैं वहाँ पे बाउल्डर और सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड में स्टैंड है. विच वर द इंडिकेशन दैट देयर आर ब्यूरियल बेनिथ. मतलब ब्यूरियल बेनिथ मतलब उनका कोई इंडिकेशन है, बताते हैं कि इस फैमिली से इसका नाम लिखा जाता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है. सोशल डिफरेंस था ब्यूरियल्स में. इस चैप्टर में ब्यूरियल्स के बारे में बात की है क्योंकि चैप्टर का नाम है ब्यूरियल्स. बुक्स हो गए हमारे ऋग्वेदा सबसे बड़ी बुक है. और आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम दैट ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड विद दिस स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू डेड पर्सन. स्केलेटन मिला तो ऑब्वियसली बात है डेड पर्सन का बिलोंग करता है. ब्रह्मगिरी ए स्केलेटन वॉज ब्यूरिड विद 33 गोल्ड बेड्स, 2 स्टोन बीड्स एंड 1 conch shell, whereas other skeletons only had a pond. एक ब्रह्मगिरी का एक स्केलेटन मिला है, एक कबर मिली है, ब्यूरियल मिला है. उसके अंदर एक स्केलेटन वॉज ब्यूरिड विद 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स एंड 1 conch shell. वेयर जो दूसरे स्केलेटन्स मिले वहाँ पे कुछ नहीं था, एक पॉट रखा हुआ था. दिस शो द डिफरेंस इन स्टेटस. ये स्टेटस को डिफरेंट करता है कि अमॉन्ग्स द पीपल हु वर ब्यूरिड, सम वर रिच, सम वर पुअर. समटाइम मेगालिथ हैव मोर देन 1 skeleton. मेगालिथ में जो पत्थर होते थे वहाँ पे एक ज़्यादा स्केलेटन भी मिले. इट इंडिकेट दैट पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली. अगर वो सेम फैमिली से है तो वो एक ही जगह पे उनको दफनाया जाता था. वर ब्यूरिड एट द सेम प्लेस दो एट डिफरेंट टाइम में उसी की कब्र में दफना दिया गया है. ठीक है, तो वहाँ पे नाम लिख देते थे. 1 दिस जितनों को भी दफनाएंगे एक एक करके उसका नाम लिख देते थे. उसको बिग पत्थर को क्या बोलते थे? मेगालिथ बोलते थे. स्पेशल ब्यूरीज टुक प्लेस एट इनामगोन, INAMGAON. साइट ऑफ इनामगोन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर घोद, GHOD, a tributary of the Bhima, which was occupied between 36,000 and 27,000 years ago. Bones of a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food, have also been found. Bones of a number of animals की जो bones हैं, many bearing cut marks that show they have been used as food. मतलब बोन्स मिले क्योंकि कट मार के उनको काटा गया, उनको फूड के तरह भी यूज़ किया जाता था, वो भी मिला है. स्केलेटन स्टडीज टेल अस अबाउट बेटर वे ऑफ आइडेंटिफाइंग डेड बॉडी. स्केलेटन्स ने हमें पढ़ाया कि हम उसको किस तरीके से बेटर वे यूज़ कर सकते हैं उनको डेड बॉडीज़ को पढ़ने में. सो थैंक यू गाइज. ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 NCERT नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे. टिल देन बाय बाय.